Question number 1. Which of the following is not a physical change? So friends, we have to identify from the given option which change is not a physical change. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज इन दोनों में डिफरेंस क्या है. So friend, the change in which no new substance is formed, that change is called as the physical change. And the change in which new substance is formed, that change is called as the chemical change. Okay, let's have a look towards the option. Option number A. Boiling of water to give water vapor. So friend, whenever there is a boiling of water, only the state of water changes from liquid to gas. No new substance is formed. Therefore, it is a physical change. Melting of ice to give water. Whenever there is a melting of ice, here also only the state of water is changed from solid to liquid. Hence, it is also a physical change. Third, dissolution of salt in water. Whenever salt is dissolved in water, no new substance is formed. The salt particle just get adjusted between the gaps of water molecules. Hence, it is also a physical change. Option number D. Combustion of liquefied petroleum gas. Friends, whenever there is a combustion of liquefied petroleum gas, new substance, that is carbon dioxide and water vapors are produced. So as in this case, the new substances are being formed, hence it is not a physical change. It is a chemical change. So the correct answer of question number 1 is option number D. That is, combustion of liquefied petroleum gas is not a physical change. Question number 2. The following reaction is an example of a. ओके सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है और हमें उसका टाइप आइडेंटिफाई करना है. द रिएक्शन इज 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O. ओके, वी हैव टू फाइंड द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन. चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है. फर्स्ट ऑप्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो फ्रेंड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीनिंग है कि रिएक्शन in which an element displaces other element from its solution. So if you look this reaction carefully, you will observe that this oxygen atom displaces hydrogen from its solution and it forms the 4NO. As oxygen displaces hydrogen, hence it is the displacement reaction. Okay, option number 1 to है displacement reaction. Second reaction is combination reaction. So friend, combination reaction means whenever two or more reactant combine to form a single product, that reaction is called as combination reaction. But in this reaction, no single product is formed after combination of reactant, hence it is not a combination reaction. यह एक combination reaction नहीं है. Third option is redox reaction. So friend, redox reaction is a reaction in which oxidation and reduction टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. अभी इस एग्जाम्पल में, इस इक्वेशन में अगर हम ठीक से देखते हैं तो हियर देयर इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो हो रहा है. ऑल्सो यहाँ पे देखिए कि दिस ऑक्सीजन एटम गेन्स द हाइड्रोजन and it forms the H2O. Hence here it is the addition of hydrogen, and addition of hydrogen is called as the reduction. So in this reaction, oxidation and reduction takes place simultaneously, therefore it is the redox reaction. तो अभी तक तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और रेडॉक्स रिएक्शन है. फोर्थ ऑप्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस combine to form salt and water. लेकिन इस एग्जाम्पल में एसिड और बेस तो रिएक्ट नहीं हो रहे, hence it is not a neutralization reaction. So from the given 4 option, it is the displacement reaction and redox reaction. So option number 1 and 3 are correct. Hence the correct answer will be option number C. Question number 3. Which of the following statement about the given reaction are correct? Okay, हमें एक रिएक्शन दी गई है और हमें कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए गए हैं, तो हमें उनका करेक्टनेस यहाँ पे चेक करना है. सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन. 3Fe
plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. This is the reaction. Okay, सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1. स्टेटमेंट नंबर 1, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. सो फ्रेंड, ऑक्सीडाइज कोई एलिमेंट कब होता है? व्हेनेवर इट गेन्स द ऑक्सीजन. हियर इन दिस रिएक्शन दिस आयरन gains the oxygen. Okay, hence we can say that iron metal is getting oxidized. So statement number 1 is correct. Statement number 2, water is getting reduced. So friend, whenever there is a addition of hydrogen or removal of oxygen is there, we can say that it is reduced. यहाँ पे अगर हम लोग ठीक से देखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऑक्सीजन को लूज कर रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रहा है. तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है. हेंस इट इज द हेंस वी कैन से दैट वाटर इज गेटिंग रिड्यूस बिकॉज इट लूजेस द ऑक्सीजन. सो ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है. ऑप्शन नंबर 3, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो फ्रेंड, किसे कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर किसे कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट? जो एलिमेंट या कंपाउंड अदर एलिमेंट या कंपाउंड को ऑक्सीडाइज्ड होने के लिए हेल्प होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. या फिर जो एलिमेंट और कंपाउंड दूसरे एलिमेंट और कंपाउंड को रिड्यूस होने के लिए हेल्प करता है उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. इस एग्जाम्पल में द वाटर मॉलिक्यूल हेल्पिंग आयरन फॉर ऑक्सीडेशन. देखो आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन होने के लिए उसे हेल्प किसने की है? उसे हेल्प की है वाटर ने. सो वाटर इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो फ्रॉम द ऑप्शन नंबर 3rd and 4th, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, दैट वाटर इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, सो फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 and ऑप्शन नंबर 4 are correct options. So therefore 1, 2, 4 means option number C will be the correct option. Question number 4, which of the following are exothermic processes? Okay, हमें कुछ प्रोसेसेस यहाँ पे दी गई है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि उनमें से कौन सी प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस है. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है. इट इज द प्रोसेस इन विच हीट इज इवॉल्व, जिसमें कि हीट प्रोड्यूस होती है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है. सबसे पहला ऑप्शन है रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम. ओके, सेकंड ऑप्शन इज डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड. ओके, ऑप्शन नंबर 3 इवोपरेशन ऑफ वाटर एंड ऑप्शन नंबर 4 सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर. ओके, सो ये 4 ऑप्शन में से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोसेस यह एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. So friends, please note one thing. Whenever there is a reaction of quicklime with water, जब भी quicklime और water का reaction होता है, then large amount of heat is released along with the formation of calcium hydroxide. Okay? तो calcium hydroxide फॉर्म होता है और उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट फॉर्म होती है. इस एक्सपेरिमेंट को जब हम बीकर में परफॉर्म करते हैं, अगर बीकर को हमने टच किया तो वी विल फील द वार्म. ओके, बीकर थोड़ा सा वार्म फील होता है. सो इट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Also, the process of dissolving an acid or base in water is hyloexothermic reaction. जब भी पानी में एसिड या फिर बेस ऐड करते हैं तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. तो ऑप्शन नंबर 2 भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. Also, evaporation of water and sublimation of camphor are endothermic reaction. वाटर का इवोपरेशन और जब सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर होता है तो यह होने के लिए हीट इज एब्जॉर्ब नॉट रिलीज, तो वो तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाती है. सो फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 आर द एक्सोथर्मिक प्रोसेस कि जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है, लिबरेट हो रही है. सो हेंस द करेक्ट आंसर विल बी 1 और 2. हाँ, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A. Question number 5. 3 beakers labeled as A, B and C, each containing 25 ml of water were taken. Okay, 3 बीकर लिए गए हैं जिनको नाम दिया गया है A, B and C. सपोज यह वो बीकर है A, B and C जिनमें कि 25 ml पानी भरा हुआ है. A small amount of NaOH, anhydrous copper sulfate, that is CuSO4, and NaCl
were added to the beaker A, B and C respectively. Okay, first of all beaker A में ऐड किया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH. सेकेंड बीकर में ऐड किया हुआ है अनहाइड्रस CuSO4. ओके, और थर्ड बीकर में ऐड किया हुआ है NaCl दैट इज द सोडियम क्लोराइड. उसके बाद में hence it is observed that there was an increase in temperature of the solutions contained in beaker A and B. ओके, जो बीकर A और B था उनमें टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ऐसा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे नोटिस हुआ है. Also, whereas in case of beaker C, the temperature of solution fall. जो beaker C था उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो गया. ओके, it falls. तो हमें पूछा गया है which of the following statement is or are correct. ओके, तो सबसे पहले इस एक्टिविटी को ठीक से पहले समझ लेते हैं कि 3 बीकर लिए गए थे A, B, C. ओके, जिनमें थोड़ा सा पानी था. बीकर ए में ऐड किया गया NaOH, बीकर बी में ऐड किया गया अनहाइड्रस CuSO4, बीकर सी में ऐड किया गया NaCl. और ऐसा नोटिस हुआ कि बीकर ए और बीकर बी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज, और बीकर सी का जो टेम्परेचर है वो हो गया यहाँ पे डिक्रीज. सो दिस वॉज द ऑब्जर्वेशन. ओके, और हमें पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. तो पहला स्टेटमेंट, इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज ऑकर. सो फ्रेंड, एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. और अभी हमने देखा कि बीकर ए और बी में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सो ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट है. ऑप्शन नंबर बी सेकेंड, in beaker A and B endothermic processes has occurred. So friend, endothermic process means कि it is the process in which the temperature is decreased because heat is absorbed. तो A और B में तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, वो तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. सो इट कैन नॉट बी एंडोथर्मिक प्रोसेस. सो स्टेटमेंट नंबर बी इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट नंबर 3, इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज ऑकर्ड. बीकर सी का जो टेम्परेचर है वो डाउन हुआ था, तो उसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो नहीं होगा. सो यह एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट 4, इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज ऑकर्ड. यस, बीकर सी का जो टेम्परेचर है वो कम हुआ था, सो इट मस्ट बी द एंडोथर्मिक प्रोसेस. सो स्टेटमेंट नंबर 4 is the correct statement. So friend, from the given 4 statement, statement number 1 and statement number 4 are the correct statement. So the option number C, that is 1 and 4, will be the correct answer.